हार्दिक अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी का, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय सांसद श्री शमशेर सिंह मनहास जी। श्री रोहित कंसल जी से कि वो तशरीफ लाएं और शॉल भेंट करें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी को। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, जोरदार तालियों के बीच श्री आर.के. सिंह साहब। सिंह साहब को जम्मू माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा। अभय कुमार सिंह जी शॉल भेंट करेंगे को सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, माननीय संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा जी, श्री राजन कुमार जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NHPC, राजा याकूब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक विकास और खुशहाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा के क्षेत्र में जल विद्युत को विशेष स्थान हासिल है। अगले 4 वर्षों के दौरान भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ऊर्जा क्षमता को नुमायां तौर पर बढ़ाने की परिकल्पना कर रहा है। इसकी खातिर जॉइंट वेंचर कंपनी जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का गठन किया जा रहा है, जिसे 850 मेगावाट रतले प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार चिनाब नदी की विशाल जल विद्युत क्षमता से लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा, जिससे पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी का होना कुदरती बात है। जल विद्युत के अन्वेषण का प्रभार जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया गया है। इसे और अधिक बढ़ाने हेतु वर्ष 2011 में चिनाब वन ग्रिड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अवश्य ही याद किया जाएगा, जब एक साथ 850 मेगावाट रतले, 930 मेगावाट किरथई, 1856 मेगावाट सावलाकोट जल विद्युत परियोजना तथा दुलहस्ती स्टेज 2 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होंगे। इन पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री आर.के. सिंह साहब, हिज एक्सेलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, MP of the area in which many of these projects are going to come about, respected members of parliament Shri Jugal Kishore Sharma ji, Shri Shamsher Singh Manhas ji, respected Secretary Power Government of India, Chief Secretary Jammu and Kashmir, advisor to Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, distinguished dignitaries of the dais, officers, friends, it's indeed a matter of pride and privilege, not only for the Power Development Department of Jammu and Kashmir, but for all of us in the Union Territory, to warmly welcome Honorable Minister of State for Power, Shri R.K. Singh Saab, Honorable Lieutenant Governor of
UT of Jammu and Kashmir, Honorable MOS, and so many other dignitaries. And what an occasion it is today. When we were planning the investment summit last year, we were trying to identify what are the sectors, what are the assets in which we can invite investment, in which we can move further. And on top of the list was hydropower generation, where Jammu and Kashmir has a natural advantage. Unfortunately, in 70 years since independence, we had been able to develop only 3,500 megawatts of the 18,000 megawatts or so potential that we have identified. But I'm so proud to say that in the last 2 years alone, we have pushed the envelope, we have set in process a pipeline that will result in the addition of another 3,000 megawatts of power by 2024-25. And the steps that we are going to take today will result in another 3,500 megawatts of power being developed in further 4 years after 2025, which means that we shall double our generation capacity in the next 3 years and triple our generation capacity in the 3 years after that, which is going to be a unique achievement for Jammu and Kashmir Union Territory. And I thank Honorable. That is not the only thing that we are doing today. Generation is important because it will pump 35,000 crores in the economy, create jobs, make us a power surplus state, bring us in a position where we will not only get free power, but we'll also be able to sell power outside. But we are conscious of the fact that it is equally important to supply power to consumers. So I warmly welcome each one of you for agreeing to be part of what will undoubtedly be a historic day and historic occasion, not only for the Power Development Department of Jammu and Kashmir, but the entire Union Territory of Jammu and Kashmir. Thank you very much. Personal Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, Dr. Jitendra Singh Sahab, His Excellency the Lieutenant Governor of UT of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Sahab, respected Shri Basir Ahmad Khan, Advisor to Government of J&K, respected Shri Jugal Kishore Sharma, MP Lok Sabha, respected Shri Shamsher Singh Manas, MP Rajya Sabha, Chief Secretary of J&K Shri Subramanian Sahab, Secretary Power Government of India Shri Sanjeev Nandan Sahai Sahab, Joint Secretary Hydro Shri Tanmay Kumar Ji, Principal Secretary JKPDD Shri Rohit Kansal Ji, officials of UT of J&K, Power Development Department, JKSPDC, NHPC, CBPP. Ladies and gentlemen, let me at the outset extend a very warm welcome and a happy new year to each one of you. Respected dignitaries, it is indeed a matter of profound privilege and honor for me capabilities of NHPC, and NHPC being a part of today's event is nothing but a part of that belief. You have been a source of encouragement and inspiration for us, and I assure you that NHPC shall not leave any stone unturned in achieving the targets assigned to it under your able leadership and guidance. Sir, we are truly honored to have your presence here today. Respected dignitaries, I also feel privileged and honored to have the presence of Dr. Jitendra Singh Sahab, Honorable Minister of State, Ministry of Development of North Eastern Region and MOS for Prime Minister Office, Personal Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space with us here today. Sir, I would like to take this opportunity to express my gratitude and appreciation for the support you have extended to NHPC right from the day one. The fact that Ratla Hydroelectric project has now come to its
fruition as a testimony to your time-to-time intervention and monitoring. Sir, thank you for gracing this occasion with your kind presence. It is also a case, Sri Manoj Sinha Sahab, to this event. Excellency, your presence here today underscore the value of you attached to the importance of development of untapped hydroelectric potential in the region. The support we have received from JNK administration the recent past has been unprecedented and extremely encouraging. Your efforts go to a long way in achieving the target of the UT. We thank you for your guidance and look forward to your continued support and blessings. Sir, thank you for gracing this occasion with your kind presence. Ladies and gentlemen, last but not the least, I welcome and put on the record my sincere appreciation to respected Chief Secretary, Government of UT of JNK Sri Subramaniam Sahab, Secretary Power Sri Sanjeev Nandan Sahai Sahab, Joint Secretary Hydro Tanmay Ji, Principal Secretary JKPDD Sri Kansal Ji, and all other officials of Government of UT of JNK for their unstinted support in shaping the partnership. Though our association with the Government of JNK is old and time-tested, however, NHPC is determined to work closely with JKS PDC to leverage each other's strength for the mutual benefits. I am of the firm belief that this new venture in the form of Ratla Hydroelectric Project shall further consolidate our synergy and help us build a sustainable partnership. Corporation Limited was incorporated on November 7, 1975. With the aim of tackling the vast hydropower potential of the country, it started its journey by executing the long-stalled and delayed Salal Stage 1, Bera Silu and Loktak hydroelectric projects. Since then, NHPC has grown steadily and has executed the most challenging and difficult hydropower projects across India. NHPC has overcome challenges like rapid rushing rivers, mighty mountains, deep caves, flash floods, geological surprises, underground gas explosions and much more. It has created for itself the unique reputation in being the most premier organization in hydropower development. Today, the company is a Schedule A enterprise of the Government of India, having a prestigious mini Ratna status. NHPC born in 1975, we had only 3 projects. Thereafter, we made 24 power systems in different parts of the country. At present, we are already working on 5 projects with 4,924 megawatt. And we have planned for another 7,000 megawatt, for which already clearances at the different level is going on. And we are very hopeful that within 2 years of time, we will be starting all these projects in the phases. In hydro, we have the capacity and the capability to develop right from inception to the commissioning for any side of the project, anywhere, any location, doesn't matter for the officers. It has आपने प्रधानमंत्री के आह्वान 9 मिनट किया कराने 9 लाख को 9 मिनट किया कराने की सुरक्षा की उसमें जो आपने योगदान किया यह भी बहुत ही काम होता है अभी बहुत काम करना है और अभी बहुत आगे बढ़ना है आपको कम से कम 50,000 के बराबर सब जानकर करके ये प्रोग्राम चलाना चाहते हो अपने हाइड्रो पावर की क्षमता है It is now in an aggressive expansion mode and is constantly exploring opportunities towards increasing its presence across the country and abroad. NHPC is completely equipped towards executing both large and small hydropower projects. It uses the latest technological methods during the investigating, planning, designing and execution of projects. The company is using up-to-date technologies and instruments to aid its team of highly qualified professionals. It has also established a real-time seismic data center for receiving earthquake data recorded at dams on real-time basis. NHPC has now diversified and has forayed into solar and wind power sector. It is exploring new opportunities to develop CMD NHPC Shri Abhay Kumar Singh
प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जम्मू कश्मीर श्री रोहित कंसल और एमडी जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजा याकूब फारूक। इन लम्हों के लिए बहुत संघर्ष किया है हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने, हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, ये जो MOU इस समय जिस पे हस्ताक्षर हो रहे हैं, साइन हो रहा है, ये है 850 मेगावाट रटले प्रोजेक्ट। और जिस तरह से ठीक है, इससे अगला जो प्रोजेक्ट है वो है 930 मेगावाट करथई स्टेज 2। इस पे हस्ताक्षर करेंगे CMD NHPC श्री अभय कुमार सिंह और उसके ऊपर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं और इससे तकदीर बदलने वाली है रियासत जम्मू कश्मीर। हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, इसके आवाम की बिजली में सुधार होगा। और जी, जम्मू शहर में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ है, जिससे जम्मू शहर छोटे बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, हमारे माननीय अतिथियों की मौजूदगी में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय, ये हम देख रहे हैं कि रोहित कंसल जी और CMD NHPC अभय कुमार सिंह जी ने आदान प्रदान किया है। के साथ अपने बिजली क्षेत्र को कुशल, टिकाऊ और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की ओर अग्रसर है। जम्मू कश्मीर जल विद्युत संसाधनों का भंडार है, परंतु 14,867 मेगावाट की कुल अनुमानित क्षमता में से पिछले 70 वर्षों में केवल 3,504.9 मेगावाट का ही उत्पादन किया जा सका है, जबकि अब यूटी में अगले 4 वर्षों में अर्थात 2024 तक लगभग 3,625 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की है। आगामी बिजली परियोजनाओं के निर्माण के साथ आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर न केवल बिजली पर्याप्त होगा, बल्कि बिजली सरप्लस यूटी होगा। पक्कलडूल 1,000 मेगावाट और किल 624 मेगावाट की 2 महामहिम परियोजनाएं, जो क्रमशः 8,112.12 करोड़ रुपए और 4,287.59 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत पर शुरू की गई थी, इनके निर्माण कार्य की भी गति तेज हो गई है। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ECPDCL, RECTPCL आदि द्वारा विभिन्न कार्य जोरों शोरों पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी का पावर सेक्टर, जो कई दशकों से बिजली की खरीद हेतु भारी ऋण के बोझ से ग्रस्त था, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित
आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत 11,024.47 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त कर अपने सभी ऋणों से मुक्त हो गया है। इस योजना से जम्मू कश्मीर के पावर क्षेत्र के नवगठित बिजली निगमों को एक बड़ा सहयोग मिला है, जिससे वे बिजली वितरण में अपेक्षित सुधार कर यहाँ के उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर को ऊंचा उठाने में अति सहायक सिद्ध हुए हैं। न केवल पारंपरिक उपाय बल्कि आधुनिक IT हस्तक्षेप द्वारा विद्युत वितरण में श्रेष्ठता लाने के लिए PDD डिपार्टमेंट ने एक फीडर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को तैयार किया है, जिससे रिलायबिलिटी इंडाइसेस की निरंतर निगरानी की जा सकेगी और वितरण क्षेत्र को न्यूनतम हानि वाला बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की रिप्लेसमेंट के लिए भी एक विशेष रणनीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को न्यूनतम समय यानी शहरी इलाकों में 24 घंटों के बीच और ग्रामीण इलाकों में 48 घंटों के बीच रिप्लेस किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 17% से अधिक बिजली की यूनिटें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यहाँ भारी सर्दियों में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है और आशा की जाती है कि अगले वर्ष इस दिशा में और भी सुधार एवं उन्नति की जाएगी। इसी संदर्भ में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास और उद्यमिता श्री RK सिंह जी एवं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK श्री मनोज सिन्हा जी एवं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस दिशा में संपूर्ण किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिकों को समर्पित करेंगे। लोकार्पण के कार्य इस प्रकार हैं। ट्रांसमिशन सेक्टर में 220 ऑर्डिनेंस के कार्य आज लोकार्पित किए जाएंगे, जिनमें बर्न ग्रिड स्टेशन में 50 MVA का नया ट्रांसफार्मर, ड्राबा और सियोट ग्रिड स्टेशन में 50-50 MVA के नए ट्रांसफार्मर्स, मागम ग्रिड स्टेशन का 50 MVA से 100 आल का सपना साकार करने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। किशोर शर्मा जी, माननीय सांसद शमशेर सिंह मनहास जी, जनाब बसीर खान साहब, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेक्रेटरी पावर भारत सरकार संजीव नंदन सहाय और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर BVR सुब्रमण्यम जी। अब माननीय केंद्रीय मंत्री अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे। कि जो 19 प्रोजेक्ट्स हमने जो अभी आपके सामने जिनका जिक्र किया, MOU पे हस्ताक्षर हुए, पट्टिकाओं का अनावरण किया गया, वो सभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के जो संसदीय क्षेत्र है उसी में आता। ऊर्जा मंत्री और मंत्री परिषद में मेरे साथी श्री राजकुमार सिंह, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और हमारे मित्र मनोज सिन्हा जी, लोकसभा में मेरे साथी जुगल किशोर जी, राज्यसभा में हमारे एक वरिष्ठ सदस्य शमशेर सिंह मनहास जी, भारत सरकार में पावर सेक्रेटरी सहाय साहब, एडवाइजर उपराज्यपाल बशीर साहब, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जी, NHPC के चेयरमैन AK सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जम्मू कश्मीर रोहित कंसल जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के उच्च अधिकारीगण, इस जम्मू नगर के जाने माने महानुभाव और दोस्तों,
जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि अधिकतर जिन प्रोजेक्ट्स का आज लॉन्च हुआ है वो इत्तेफाक से मेरे संसदीय क्षेत्र में, और इसलिए जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि होने के नाते और संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे राजकुमार जी का धन्यवाद और करना ही है और बधाई भी देनी है। लेकिन उससे पहले उनकी अनुमति से मैं चाहूंगा बात शुरू करूं अपने मित्र लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को बधाई देकर के कि कहीं इस कार्यक्रम में वो बात छूट ना जाए कि गत 2 सप्ताह में जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से 70 साल के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, सफल चुनाव हुआ, और शायद ये मनोज जी के भाग में लिखा था कि उनकी देखरेख में हो। और उसके अतिरिक्त मैं इसलिए भी उनको बधाई देना चाहूंगा कि यदि आप पिछले 30 वर्ष के आतंक का इतिहास देखें तो मैं आंकड़ों सहित ये कह सकता हूं कि शायद ये पहली बार एक ऐसा चुनाव था जहां ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई नामुराद वारदात हुई, और इतना भारी मात्रा में मतदान हुआ। वरना संसद और विधानसभा के चुनावों में भी विशेषकर घाटी में 10-15% से अधिक अपेक्षा नहीं रहती थी और उससे बड़ी संतुष्टि भी हो जाती थी। इस बार बढ़ चढ़ करके घाटी में भी 50-50, 60-60% मतदान होना। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्लेषक इससे कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। शायद जनता ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बार बार एक ही वंश से जो उम्मीदवार उतर करके आते थे उनसे जनता ऊब गई थी। वही चेहरे विधानसभा के लिए भी, वही चेहरे संसद के लिए भी, और इस प्रकार लोकतंत्र के प्रति उनकी आकांक्षाएं बुझती चली जा रही थी। वो जो जमहूरियत की तमन्ना जो झुलस गई थी, हसरत जो झुलस गई थी, उसने फिर से अड़ाई ली है। और मैं ये कहूँगा कि इस भारी मतदान का ये एक शायद संदेश है कि पुनः जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति जागृति हुई है, जमहूरियत के प्रति हसरतमंदी है। हित के थे, जनहित के थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर को वंचित रखा गया था, वो पहली बार यहां पर लागू। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री और यहीं के सांसद श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान यहाँ के सम्माननीय लोकसभा सदस्य महोदय, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मनहास जी, हमारे सलाहकार श्री बशीर खां जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री VBR सुब्रमण्यम जी, भारत सरकार के ऊर्जा सचिव, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के CMD श्री AK सिंह जी, सभागार में उपस्थित डॉक्टर निर्मल सिंह जी, यहाँ के महापौर, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष में बीमारी से तो मुक्ति मिले ही, विकास की एक नई गाथा जम्मू कश्मीर लिख सके। आगाज 2021 का तो शानदार तरीके से हो रहा है, ये मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन 2020 की विदाई भी जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए इलाज की सुविधा देकर के गया। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सौगात जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दी।
आयुष्मान भारत सेहत के अंतर्गत। 1 तारीख को मैं दिल्ली में था और नफेड और यहाँ के कृषि विभाग में एक MOU हम लोगों ने साइन किया 1 तारीख को, जिसमें हाई डेंसिटी एप्पल की एरिया भारी मात्रा में कश्मीर में भी बढ़े और जम्मू में भी जिन जिलों में सेब लगाया जा सकता है वहां सेब लगाया जाए। इस काम को अंजाम देने की शुरुआत हम सबने की है। कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज का क्लस्टर बनाना, मार्केट लिंकेज करना, सैफरन की GI टैगिंग की बात आपने सुनी थी, लेकिन जम्मू में भी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और बाकी किसान पैदावार कर रहा है उसकी भी GI टैगिंग कराना, ये हमारा कृषि विभाग नफेड के साथ मिलकर के ये काम करेगा। 2 दिन बाद ठीक आज ऊर्जा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर बने, इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। रोहित कंसल जिन्हें भी एक प्रेजेंटेशन PDP डिपार्टमेंट का आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। जब श्रीनगर से हम जम्मू आ रहे थे तो कश्मीर के निवासी एक ही बात की चिंता व्यक्त करते थे कि पिछली बार सर्दियों में बिजली के अभाव के कारण बहुत परेशानी हुई। स्वाभाविक भी है, 2 बार हम सब लोग बैठे, जो संभावना बन सकती थी, अभी उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 17% ज्यादा बिजली उपलब्ध हो रही है। जब मैंने बैठक में बात कही कि भाई बर्फ पड़े तो भी 24 घंटे में ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में बदलना ही है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 48 घंटे में, कई प्रकार के प्रश्न आए, लेकिन मैं आभारी हूं अपने सदस्य सहयोगियों का जिन्होंने मिलकर के केवल फैसला नहीं किया बल्कि आज उसे जमीन पर उतार करके दिखाया है। अभी कुछ दिन पहले मैं था श्रीनगर में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अस्पताल का शिलान्यास था, 100 बेडेड हॉस्पिटल का। भारत सरकार के श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार जी थे, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे। वहां दुख व्यक्त कर रहे थे कि सर्दियों में बिजली की बहुत दिक्कत होती है और गर्मी में जम्मू को बड़ी दिक्कत होती है। पुराने व्यक्ति हैं, यहाँ के कई बार मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी राजनेता हैं, ये सच है। और जम्मू और श्रीनगर में भी हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे, ये सच्चाई है। देश के दूसरे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने 24/7 का लक्ष्य रखा है और RK सिंह जी जो कहते कम हैं करते ज्यादा हैं, इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटा 12 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए हमें कुछ न कुछ ऐसा फैसला करना है जिससे आने वाले 3-4 वर्षों में, और मैं तो चाहूंगा कि 2 वर्ष में जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम 24 घंटे बिजली दे सकें। इस तैयारी के साथ हम काम करना चाहते हैं। उस विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं जिसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। मोटे तौर पर 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के कारण आज जम्मू कश्मीर में आ रहा है। 70 सालों में जहां हम पहुंचे हैं, आने वाले 4 सालों में उतनी ऊर्जा हम जम्मू कश्मीर में बना सकेंगे। आज का दिन मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक दिन है। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने कहा था कि एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है, यह उसका सबसे सुनहरा पन्ना है। आज 3 जनवरी 19 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन हुए हैं, उसमें ट्रांसमिशन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के भी हैं, कुछ कश्मीर के हैं, कुछ जम्मू के हैं। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। एक बस बिल पहुंचाएगी। मैं समझता हूं कि अब आधुनिक तकनीक के जमाने में बिल पहुंचाई जाए,
इससे अब जम्मू कश्मीर को बाहर निकलना चाहिए। अब हमें उस दिशा में जाना चाहिए कि प्रीपेड मीटर 2 साल में जम्मू कश्मीर के हर घर में पहुंच जाए। इस काम को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है और हर घर में मीटर लगे। अगर ये काम हम नहीं कर सकेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि हम सबके जरूरत के हिसाब से 24 घंटे बिजली दे सकेंगे। और इसलिए इस काम को हम आगे करने वाले हैं। मैं जानता हूं इसको लेकर के कई लोग अनेक प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन जो केवल बात करते हैं केवल बात करते हैं, काम करने वाले कभी बातों से घबराते नहीं और ये काम हम करके दिखाएंगे। मित्रों, मोटे तौर पर आप देखिए देश के विभिन्न राज्यों में तो एवरेज ग्रोथ जो पावर सेक्टर में है 10% की डिमांड हर साल बढ़ती है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाली है, जल्द ही आ सकती है, किसी दिन कैबिनेट उसे अनुमति देगा, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में पावर की डिमांड 15% हर साल बढ़ने वाली है। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए अगर हमने अभी तैयारी नहीं की तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर शायद राष्ट्र के बाकी राज्यों से निश्चित रूप से हम उस समानता तक नहीं पहुंच सके। शायद आगे आने वाले दिनों में हम और पिछड़ जाएंगे। अभी बताया गया कि अभी तक 3504 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं और आज 3498 मेगावाट बिजली बनाने का संकल्प यहां हस्ताक्षरित किया गया है। मित्रों, ये ज्वाइंट वेंचर है एनएचपीसी के साथ हमारा, और मैं कहना चाहता हूं कि सियालकोट सावलकोट ये 1984 में आरके सिंह जी बनना शुरू हुआ था। 36 साल हो गया। 36 साल में 1 मेगावाट पावर हम नहीं बना सके। कई लोग यहां विद्वान बहुत हैं, बता रहे थे मेरे पहले जितेंद्र सिंह जी, कई लोग तरह तरह की बात करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक समय था जब ये धारणा बन गई थी कि इस देश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग नहीं सकता है। एक धारणा बन गई थी। देश में तमाम पर्यावरण पर काम करने वाले विशेषज्ञ, उनके पास और कोई काम नहीं था, यही काम था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां बन रही है वहां चल के धरना देना। और मैं आज सार्वजनिक रूप से नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व सीएमडी योगेंद्र प्रसाद का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के कारण देश में यह भरोसा कायम हो सका कि नहीं 5 साल में 4 साल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकती है। और एनएचपीसी को वो दक्षता हासिल है और इसलिए हमने फैसला किया कि एनएचपीसी के साथ हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे। पहले भी एनएचपीसी को कुछ परियोजनाएं दी गई, लेकिन पहले जो 3 परियोजनाएं एनएचपीसी ने बनाई हैं वो राज्य सरकार को वापस मिलेंगी ऐसा अनुबंध में कहीं लिखा हुआ नहीं था। लेकिन आज जो हम अनुबंध कर रहे हैं उसमें 40 साल बाद ये पूरी परियोजना जम्मू कश्मीर सरकार की होगी। ये नया प्रावधान हमने नई में डाला है। 13% मुफ्त बिजली बिना एक पैसा लगाए हुए। ये हमारी इक्विटी भी वो भी आरके सिंह जी और प्रधानमंत्री जी देंगे, भारत सरकार देगी, एक पैसा हम नहीं दे रहे हैं। 13% फ्री बिजली हमें मिलेगी। और उसको अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 454 मेगावाट, आज हमारी जो डेफिसिट है 500-600 मेगावाट की, तो 454 मेगावाट बिना पैसे की बिजली हमें 40 साल तक मिलने वाली है। और उसके बाद ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर राज्य के होंगे, यूटी के होंगे। ये स्थिति हम पाने वाले हैं। और केवल यही नहीं होना है, बड़ी चर्चा कार्बन फुटप्रिंट की हो रही है, कार्बन इमिशन की हो रही है, उससे भी निजात मिलने वाली है। पर्यावरण का संतुलन ठीक होने वाला है। और मुझे लगता है कि वो लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जो इच्छा है कि पावर डेफिसिट स्टेट से हम पावर सरप्लस स्टेट की ओर बढ़ें, उस दिशा का सबसे महत्वपूर्ण कदम या उसकी बुनियाद आज 3 जनवरी को आरके सिंह जी की उपस्थिति में रखी गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 4 वर्षों में वो स्थिति हम हासिल करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूं आरके सिंह जी का। यहाँ आने के बाद पहली बार जब मैं उनसे मिलने गया था तो यहाँ के हमारे जो प्रमुख सचिव हैं ऊर्जा के, रोहित कंसल जी, और मुख्य सचिव श्री BVR सुब्रमण्यम जी से मैंने लिख, उनकी 2 ही 3 दिन हुआ था, 4 दिन, कि क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं आरके सिंह जी के दफ्तर गया तो मैंने उनको बताया कि ये है, ये है, ये है। तो जो वाक्य उन्होंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूं
मेरा स्वभाव नहीं किसी के सामने मैं तारीफ करूंगा, मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देखिए सारा कानून तोड़ देंगे जम्मू कश्मीर के लिए, जितनी मदद होगी वो जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूं। और जो प्रेजेंटेशन में आपने देखा है, मोटे तौर पर पीएमडीपी के पहले 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में ऊर्जा क्षेत्र में होता था, पावर सेक्टर में। ये तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और आज जो थोड़ा स्थिति सुधरी है हमारी, मैं समझता हूं कि उसके लिए जम्मू कश्मीर को निश्चित रूप से देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का आभार मानना चाहिए, जिनके कारण आज ये स्थिति यहां बनी है। और विकास पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। अगर सिक्किम को आप देखें, हिमाचल को देखें, केवल हाइड्रो पावर के बदौलत सिक्किम कहां पहुंच गया है, हिमाचल कहां पहुंच गया है। हमारे पास जो क्षमता थी, कई लोग ये मान लिए थे कि यहां का पानी हमारे लिए सोना और हीरा, इसे जुगाड़ करके बंद करके तिजोरी में रखना है, और इसलिए ये परियोजनाएं लगे ना, इस दिशा में भी लोग सोचते थे। मित्रों, पानी हमारा है, पानी हमारे पास रहेगा, इसकी एक बूंद एनएचपीसी या कोई लेकर के जाने वाला नहीं है, हमको बिजली जरूर देने वाला है। ये बात मुझे लगता है कि सबके जहन में बैठा करके रखने की जरूरत है। अब अनशेड्यूल्ड पावर कट, मैं कोई बात छिपा के नहीं रखता हूं, जम्मू में रहता हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन अब उसका तात्कालिक उपाय कोई नहीं है कि हम तुरंत तात्कालिक उपाय कर लें। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि उस दिशा में ठोस काम हम कर रहे हैं। हमारा पूरा पीडीपी इसमें काम कर रहा है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सॉरी पीडीडी, पूरा डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। हम अपने कैपेसिटी काउंसिल को समझते हैं, इसलिए आज आरके सिंह जी से मैंने कहा कि हमको कुछ भारत सरकार के विशेषज्ञ दीजिए, ताकि इन सब कामों को हम तेजी से और आगे बढ़ा सकें, अपने जो हमारे लोग हैं उनको दक्ष बना सकें, उनको प्रशिक्षित कर सकें, ताकि आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने 24/7 पावर का, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से ये हम लक्ष्य हासिल करेंगे। क्योंकि के सिंह जी ठीक कह रहा हूं ना, हाइड्रो पावर है, आगे आने वाले दिनों में सोलर पावर, विंड पावर, इस दिशा में भी एनएचपीसी के साथ हम सहयोग करेंगे। जब आरके सिंह जी आए तो कुछ बातें हमने ट्रांसमिशन और जनरेशन सेक्टर में हमको क्या क्या मदद चाहिए लिख करके हमने दिया है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये जो आपकी ओर से कहा गया है, इसे निश्चित रूप से उन्होंने और भारत सरकार के ऊर्जा सचिव ने भी ये भरोसा दिया है। मैं कह सकता हूं कि एक क्वांटम लीप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हर क्षेत्र में इस तरह से सुनियोजित ढंग से विचार करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता का जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और आज की तारीख और आज का पूरा एमओयू मैं जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित करता हूं, और पूरी जिम्मेदारी से यकीन दिलाना चाहता हूं कि समस्या के निवारण के लिए दिन रात हम सब मिलकर के काम करेंगे, और समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए। के सिंह जी, आपसे विशेष रूप से, क्योंकि अभी आप फोन कर रहे थे, अब अगले महीने से मेरा फोन आपके पास जाएगा। अभी तक आपका फोन आता था कि अभी मेरे में देर हो रही है, लेकिन फरवरी से हम लोग फोन करना शुरू करेंगे, कौन क्लियर हुआ, कब से काम शुरू करेंगे, ये काम हम लोग करने वाले हैं। तो मैं इतना ही बात कहता हुआ ऊर्जा मंत्री जी को, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी के घर में उनको धन्यवाद देना मुझे लगता है कि ये उनका अपमान होगा। ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि गर्मियों की दिक्कत आप लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, हम प्रयास कर रहे हैं कि पिछली गर्मी से इस बार जम्मू के लोग बेहतर महसूस करें, और अगली गर्मी में जम्मू शहर में 1 घंटे की बिजली कटौती न हो, इसका प्रबंध करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि सफर में आज वही कश्तियां निकलती हैं, सफर में आज वही कश्तियां निकलती हैं जिन्हें खबर है हवाएं भी तेज चलती हैं,
हवाएं भी तेज चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य मंत्री एटॉमिक एनर्जी और बहुत सारे विभाग, श्री युगल किशोर शर्मा जी, माननीय संसद सदस्य लोकसभा, शमशेर सिंह मनहास जी, माननीय संसद सदस्य राज्यसभा, सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीव नंदन सहाय जी, बशीर अहमद खान जी, एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, श्री BVR सुब्रमण्यम साहब, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर रोहित कंसल जी, CMD NHPC, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाइड्रो, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी पदाधिकारीगण। किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी का डेवलपमेंट तभी संभव हो सकता है जबकि ऊर्जा उपलब्ध हो। विदाउट पावर यू कैनॉट डेवलप, and without power you cannot actually move ahead at all. The power is the fundamental requirement for improving the quality of life. It's a fundamental requirement for industry. It's a fundamental requirement for services. It's a fundamental requirement for medicine, for everything. हर एक चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और भविष्य में ये व्यवस्था हम लोग लाने वाले हैं कि आपकी मोबिलिटी के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता हो। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते। आप विकास नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आपके यहां रोजगार भी नहीं होगा। और तकलीफ की बात यह है कि पूरे देश की स्थिति को हम देखें तो ऊर्जा की व्यवस्था सबसे ज्यादा पिछड़ गई यहां जम्मू कश्मीर। और उसके लिए मैं एकदम दो टूक शब्दों में जो पूर्व की सरकारें हैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं। देश में ऐसा कोई राज्य या कोई संशासित क्षेत्र नहीं है जहां पर कि गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कांटेदार तार या बार्ड वायर का इस्तेमाल होता। इतना कम डेवलपमेंट लोगों ने किया इतने वर्षों से, 40, 50, 60, 70 वर्षों से। उनको ये हिसाब देना चाहिए। आप मानिए कि इतना पैसा जो आता रहा और जितना पैसा हर राज्य को जाता था उससे ज्यादा पैसा यहां आता था। कोई भी योजना आप उठा करके देख लीजिए क्या हुआ उसका। जबकि मैं ऊर्जा मंत्रालय में आया तो मैंने सोचा कि नहीं साहब, से पहले तो जम्मू कश्मीर जाना है। यहां आया तो मैं यहां आया 2017 के अक्टूबर में, और हमारी जो योजनाएं थी, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, APDS, ये सब प्रारंभ हो चुके थे 2014 के उत्तरार्ध में। 2015 में यहां काम शुरू नहीं हुआ था। ये सुधारना होगा। बताइए साहब, 2 साल आप लोग मिस कर गए। अभी भी उन योजनाओं पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी काम बाकी है, उसको तेज करना होगा। इसकी जिम्मेवारी सब पर, ये हम लोग को समझना होगा। इसकी जिम्मेवारी सब पर। यहां काम क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता है, इसके बारे में सोचिए जरा। बाहर से लोग आकर के क्यों नहीं काम करना चाहते, इसके बारे में जरा सोचिए और उसको सुधारिए। तो पहला काम हम लोग को यह करना होगा कि बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। माननीय अनिल साहब ने कहा कि यहां पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की क्षमता में कुछ कमी है, तो हमारे कुछ जो संगठन है उसको लगाना होगा। हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। NTPC को लगाएंगे, पावर ग्रिड को लगाएंगे, वो लोग आकर के काम भी कर जाएंगे। लेकिन वो भी ठेका देंगे तो कोई ठेकेदार आएगा तमिलनाडु से या कर्नाटक से, ये आपको ध्यान देना होगा। ये भी ठेका देंगे NHPC, तो आएगा कोई ये बेंगलोर से की कंपनी है या मुंबई की कंपनी, वो आएगी। उसको यहां काम करने देना होगा और आप लोगों को काम करने देना होगा, नहीं तो आपका विकास नहीं होगा। ये ध्यान आपको रखना होगा। 2 टूक बोलने वाला में से मैं एक बहुत बदनाम आदमी हूं, तो यही मैं 2 टूक आपको बोल रहा हूं। और ये आवश्यक है कि ये काम हो, नहीं तो विकास नहीं होगा। यह आवश्यक है कि ऊर्जा का उत्पादन हो। यह आवश्यक है कि हमारा जो ऊर्जा का सिस्टम है वो गांव-गांव तक पहुंचे। राशि की कोई कमी हम नहीं होने देंगे। ये राशि, ये आप ध्यान रखें।
राशि की कोई कमी नहीं होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आपको अपने ऊर्जा विभाग को भी मजबूत करना होगा और ऊर्जा विभाग में जो पदाधिकारी हैं उनको भी ये समझ जाना होगा कि अब हमको काम करना है, ये कहता। और हाँ, जितेंद्र जी तो खैर हमको रेगुलरली फोन करते ही थे कि जो भी योजनाएं हैं इनको निकल जाएं, तो हमारे पीछे दोनों लोग आपके यहां से एकदम बिल्कुल मजबूती से लगे रहते हैं कि हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो होगा क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी भी है। हम किसी प्रदेश को, किसी यूनियन टेरिटरी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, ये तो देश को तो करना होगा। और अभी जम्मू कश्मीर एक चैलेंज है, हमारे लिए एक चैलेंज है, हम सबके लिए चैलेंज है। ऊर्जा के क्षेत्र में ये सब नहीं होगा साहब कि हाँ 10 घंटा बिजली, 12 घंटा बिजली, नहीं, ये संभव नहीं। इसको हम लोग सुधारेंगे, सुधारने के लिए लेकिन एक बात जरूर है, बिजली का दाम आपको भुगतान करना पड़ेगा, ये मन में बैठा लीजिए। फ्री बिजली नहीं होती, बिजली आपके यहां पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन बिजली उत्पादन का जो दाम लगता है वो आपको देना होगा, ये एकदम मन में बैठा लीजिए। फ्री बिजली कहीं से नहीं आती, कनेक्शन हम जरूर दे देंगे, बिजली पहुंचा भी देंगे, लेकिन जलेगी तब जबकि आप भुगतान करने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास एवं उद्यमिता श्री आर.के. सिंह जी। इस कार्यक्रम के समापन के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, Sri R.K. Singh sir, Honorable Minister of State in Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh sir, His Excellency Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha sir, respected members of Parliament Shri Jugal Kishore Sharma ji and Shri Shamsher Singh Manhas, Advisor to Lieutenant Governor Shri Bashir Khan sir, Secretary, Union Secretary Ministry of Farm Shri Sahi sir, our respected Chief Secretary sir, distinguished senior officers and from civil administration, police department and central public enterprises. I express my sincere gratitude to Minister of State for Power for coming all the way from Delhi to grace this auspicious occasion. Sir, your presence has enhanced the today's function. I express my deep gratitude to Dr. Jitendra Singh sir for his untiring efforts in instrumentalizing various development projects for UT of Jammu and Kashmir. मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ। एक तो NHPC 2 काम करेगा, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ से हो सकता है यहीं से करेगा। उसके लिए ट्रेनिंग भी यही करावेंगे। लोगों को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ट्रेनिंग का भी व्यवस्था आपका यही करिए, लेकिन हमको चाहिए एम्प्लॉयमेंट लोकल, जो लोकल हो सकता है लोकल। हाँ, जहां पर कि आपको डिग्री चाहिए अगर वो तो ठीक है साहब, आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर अनस्किल्ड है, स्किलिंग का भी जिम्मेवारी आपका, तो एम्प्लॉयमेंट करेंगे। दूसरा, ये स्मॉल हाइड्रो की चर्चा हुई, तो वो स्मॉल हाइड्रो भी जहां कहीं भी है वो भी आप करें। अब ये हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसका भी हमको चीफ सेक्रेटरी साहब ने और रोहित कंसल ने बताया था कि उसका भी करीब 2000 करोड़ का स्मॉल हाइड्रो लंबित है, उसको भी हम स्वीकृत कर देंगे। बहुत Thank you, sir. Gratitude to our Honorable Lieutenant Governor for his presence and vision of developing Jammu and Kashmir into Naya Jammu and Kashmir. Sir, today's signing of MOUs will lead to investment of 35,000 crores in Jammu and Kashmir that would create hundreds of jobs in J&K and create infrastructure and accessibility in hitherto inaccessible areas. I also express my sincere thanks to Honorable Members of Parliament Shri Jugal Kishore Sharma ji and Shri Shamsher Singh Manhas, former ministers and senior political leaders from various parties. मेहमानों के लिए लंच की व्यवस्था है। आप सबसे गुजारिश, हम नेशनल एंथम के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Himalaya, Ganga, Uchala, Jaladhita,
सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।